Welcome back to my channel. If you are new here, hi, I am Abhishek Misra. So in this video, I share you 1 year strategy for UPSC preparation. Before starting today's topic, first take a overview of the UPSC exam pattern. Disclaimer: if you are beginners, watch it. Otherwise, skip this part. Main content of video start after this overview of exam. Basically, three exams is there: prelims, mains and interview. So this is the prelim syllabus of UPSC exam. Summary of this syllabus is that you have to cover this topic, that is history, geography, polity, economics, environment, science and tech and current events. These all are the topic which syllabus showing here. You have to complete all the topic and multiple time revision before the exam, that is within a 1 year. Now, these all are NCERT and reference book. You have to complete it and multiple time revision. Note, why I am saying multiple time revision? Just because आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड रखना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हो, उसका एक रेफरेंस बुक लेना. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ो या स्पेक्ट्रम पढ़ो. उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसे ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम. So let's begin our video. Perfect 1 year strategy for UPSC CSC. Let's take duration. May 2021 to May 2022. That is, you have more than 360 days. So I divided into 5 phases. In phase 1, that will be 3 months, May 2021 to July 2021. Phase 2, that will be goes around 3 months, that is August 2021 to October 2021. Also phase 3, that will be goes around 3 months, that is November 2021 to January 2022. In phase 4, that will be around 2 months, that is February 2022 to March 2022. So last phase, phase 5, that will be goes around 2 months, that is April 2022 to May 2022. So before starting the phase strategy, look how to cover current affair or events part, because it's most confusing part. Current affair consists national, international news, economy, sports, science and tech, person in news, summit, conference and miscellaneous topic. So now you ask, what will be the resources of my current affair? Resources are either study the Hindu or Indian Express newspaper, follow only one newspaper and one monthly compilation, either Vision IAS magazine or Insight IAS. This will be sufficient. So now start the detailed explanation of phases. In phase 1, that will be goes around 3 months, May 2021 to July 2021. You have to complete all your NCERTs plus reference book. आपको इस फेज में आपको पूरा NCERT कंप्लीट कर देना है, जितने भी इम्पोर्टेंट NCERTs हैं. सेकेंड, आपको इस फेज में डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है. आइदर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको डेली फॉलो करना है. थर्ड, करेंट अफेयर, विजन मंथली मैगजीन आपको जनवरी से जून तक ऑलमोस्ट हर मंथ 2 मंथ का आपको विजन का मंथली कंपाइलेशन कंप्लीट करना है. सो ये तीनों चीज आपको फेज 1 में कंप्लीट करना है. इन फेज 2, दैट विल बी गोज अराउंड 3 मंथ, अगस्त 2021 टू अक्टूबर 2021. आपको सबसे पहले ऑप्शनल कंप्लीट करना है और साथ ही साथ पैरेलल में आपको उसका नोट मेकिंग भी करना है, जिससे कि आप अगले फेज में उसका रिवीजन इजीली कर लो. सेकेंड, आप जो NCERT और रेफरेंस बुक जो फर्स्ट रीडिंग आपने लगाया था, उसका आपको इस फेज में रिवीजन प्लस नोट्स बनाने हैं. नोट्स अच्छे से क्रिस्प बनाना है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो नेक्स्ट फेज के लिए. थर्ड, करंट अफेयर, आपने जो पिछले मंथ में 6 महीने का करंट अफेयर मंथली प्रिपेयर किया था, उसे आपको इस मंथ इस फेज में आपको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है. प्लस आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक के मंथली मैगजीन कवर करना है. फोर्थ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, आपको इस मंथ में
इस फेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है जो कि यूपीएससी पूछता है 2013 से 2020 तक। एटलीस्ट आपको इस फेज में आपको देख ही लेना है। उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकेंड रीडिंग लगा चुके हो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के। आप इजीली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का लाइक विजन आईएएस का मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिफ्थ, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है इस फेज में भी। फेज 3 नवंबर 2021 टू जनवरी 2021 तो इसमें आपको कंप्लीट करना है जीएस टॉपिक जो कि प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, लाइक जीएस 4 एथिक्स, जीएस 1 वर्ल्ड हिस्ट्री सोसाइटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस, जीएस 3 साइंस एंड टेक इंटरनल सिक्योरिटी। आपको ये सारे आपको कंप्लीट करना है इस फेज में। सेकंड, आपने जो ऑप्शनल के नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है। साथ ही साथ इस फेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं ऑप्शनल के, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। थर्ड, जो भी आपने एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पे नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है, और ये आपका थर्ड रीडिंग होगा। तो आपने ऑलरेडी 2 रीडिंग लगा चुके हो, तो ये आपका थर्ड रीडिंग होगा। फोर्थ, न्यूज़पेपर रीडिंग और प्लस करंट अफेयर। आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है और करंट अफेयर रिवीजन करना है। इस मंथ में आपको विजन का अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मंथली मैगजीन कंप्लीट करना है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेज में, फेज 4। ये आपका फरवरी 2022 टू मार्च 2022, दैट इज आपका ये 2 मंथ तक होगा। इस फेज में आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको जब प्रीलिम्स आ जाएगा नियर बाई तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, तो आप पहले ही इस फेज में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपको बाद में इजीली ग्रास्प कर सको। और इसमें आप ये कोशिश करना जो भी आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा है और प्लस जो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो उन दोनों को मिलाकर करंट अफेयर और स्टैटिक, जैसे जीएस 2 और जीएस 3 में आप करंट अफेयर और स्टैटिक को इंक्लूड करके अपने आंसर राइटिंग इनरिच बनाओ। इस फेज में आपको ये करना है, ये पॉइंट आप याद रखना। सेकंड, ऑप्शनल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। थर्ड, एनसीईआरटी रिवीजन प्लस रेफरेंस। ये आपका फोर्थ रीडिंग है। जो भी आपने नोट्स बनाया है इस फेज में आपको उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपने ऑलरेडी 3 बार रीडिंग कर चुके हो। फोर्थ, मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। इस फेज में आपको मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है 2013 से 2020 तक, और सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये आप ध्यान रखना कि सीसेट को इस फेज में आप कंप्लीट कर लेना, कि आपको एक एसओटी रहे कि हाँ मैं 33% मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसे ला सकूं। 6th, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखना है और प्लस जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना, और इस फेज में आपको जनवरी फरवरी के मंथली मैगजीन पढ़ने हैं। सो कम टू द लास्ट फेज, फेज 5, जो कि अप्रैल 2022 टू मई 2022 तक एंड तक होगा। दैट विल बी गोज अराउंड 2 मंथ। ये फेज प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। इसमें आपको ओनली रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। आप एटलीस्ट 30+ मॉक टेस्ट देकर ही प्रीलिम्स एग्जाम देने जाना, और न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखना है। और प्रीलिम्स एग्जाम से 15 दिन पहले तक चाहो तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना छोड़ सकते हो। प्लस करंट अफेयर आपको मार्च, मई और अप्रैल मंथ का विजन का कंपाइलेशन स्टडी करना, और साथ ही प्रीवियस जो भी आपने करंट अफेयर मंथली मैगजीन से पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे ही मैं ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप अगर बना रहना चाहते हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।